بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی کلب میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ ویورز، آج پھر ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئی سچی کہانی کے ساتھ۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز کے حوالے سے نوٹیفیکیشن حاصل ہوتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی سچی کہانی کی طرف۔ تجھے کسی کی جان لینی ہوگی۔ چاند کی پہلی تاریخ کو ایک خاص وقت میں ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس لڑکے سے اگر تمہاری بیٹی کی شادی کر دی جائے تو تمہاری بیٹی ٹھیک ہو سکتی ہے، کیونکہ اس لڑکے میں ایک ایسی طاقت ہے جس پر کوئی جادو، کوئی طاقت اثر نہیں کر سکتی۔ جب اس لڑکے کا ملاپ تمہاری بیٹی سے ہوگا تو وہ طاقت تمہاری بیٹی میں چلی جائے گی، پھر شہنشاہ جنات تمہاری بیٹی پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ لیکن شہنشاہ جنات بھی یہ بات جانتا تھا، تبھی اس نے تمہاری بیٹی پر زہر بھر دیا ہے۔ اب جو بھی ہو اس سے شادی کرے گا، وہ مر جائے گا۔ چودھری دلاور یہ ساری باتیں سن کر لرز اٹھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ بولا، میں راضی ہوں، پر بتائے تو اس لڑکے کی نشانی کیا ہے؟ اس لڑکے کی نشانی اس کے دائیں پاؤں پر آدھے چاند کا نشان ہے۔ بس وہی لڑکا تمہاری بیٹی کو بچا پائے گا۔ سادھو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ تو کالے جادو کا ماہر تھا، اپنی طاقت سے وہ سب کو جان گیا، پر کاش یہ بھی جان جاتا کہ بچانے اور زندگی دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ولید اور ارمان اس مکان میں داخل ہوئے تو انہیں ایک آدمی اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ آؤ آؤ، سادھو کو تم لوگوں کا ہی انتظار تھا، اس آدمی نے کہا تو وہ دونوں حیران ہو گئے۔ سادھو جی کو کیسے پتا کہ ہم آ رہے ہیں؟ ارمان نے حیران ہو کر کہا۔ سادھو جی کو سب پتا ہے، اس آدمی نے کہا اور انہیں لے کر ایک طرف چل پڑا۔ دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ بڑا پہنچا ہوا ہے سادھو، ولید نے کہا تو ارمان نے مسکرا دیا۔ وہ دونوں اس وقت سادھو کے سامنے بیٹھے تھے۔ میں سب جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ تمہاری نوکری نہیں لگ رہی ہے، گھر میں جوان بہنیں ہیں اور بیمار باپ ہیں، آپ یہ سب کچھ جانتے ہیں؟ ارمان حیرانگی سے بولا، مجھے سب پتا ہے۔ سادھو نے مسکرا کر کہا، تمہارے ان مسائل کا حل ہے میرے پاس، بہنوں کی شادی اور باپ کا علاج بھی ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک بڑے امتحان سے گزرنا پڑے گا اور اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ ارمان نے پریشان ہو کر کہا، مجھے پوری بات بتائیں پلیز۔ اچھا سنو، چودھری دلاور ایک بہت ہی امیر آدمی ہے اور اس کی بیٹی روشنا۔ سادھو نے ساری بات تفصیل سے بتا دی، جسے سن کر ارمان اور ولید ساکت رہ گئے۔ لیکن ان باتوں سے ارمان کا کیا تعلق؟ ولید نے حیرت سے پوچھا، کہیں آپ کے کہنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ ارمان ہی وہ لڑکا ہے؟ ہاں، تم صحیح سمجھے، بالکل ارمان ہی وہ لڑکا ہے۔ جب یہ مکان میں داخل ہوا تو تب ہی مجھے پتا چل گیا تھا۔ دیکھو، اس کے دائیں پاؤں پر آدھے چاند کا نشان بھی ہے۔ اگر یہ مان جاتا ہے تو چودھری دلاور اسے اتنے پیسے دے گا کہ یہ اپنی بہنوں کی شادی بھی کر دے گا اور باپ کا علاج بھی کروا دے گا۔ بولو کیا کہتے ہو؟ سادھو نے پوچھا۔ ٹھیک ہے سادھو بابا، مجھے آپ کی ہر بات منظور ہے، ارمان نے مانتے ہوئے کہا۔ کیا ارمان، تم پاگل ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ولید نے غصے سے کہا تو ارمان نے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، پھر ابھی جاؤ، پرسوں آ جانا، تمہاری چودھری دلاور سے ملاقات ہو جائے گی۔ وہ دونوں اٹھ کر مکان سے باہر آ گئے۔ ولید سے چپ نہیں رہا گیا۔ ارمان، تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ تو کیا کروں میں تمہیں ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گا، میں ماں جی سے بات کروں گا، تمہاری جان کو یوں ضائع نہیں ہونے دوں گا، ولید نے غصے اور دکھ سے کہا۔ پلیز ولید، یہ صرف میری نہیں، اس لڑکی کی بھی حالت ہے، پتہ نہیں وہ جن اس کو کتنی اذیت دیتا ہوگا، اور پلیز مجھ سے پرومس کرو کہ تم امی کو کچھ نہیں بتاؤ گے، تمہیں اس دوستی کی قسم ہے، جو ہمارے بیچ میں ہے وہ ہمارے بیچ میں ہی رہے، ارمان نے کہا تو ولید بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ سادھو جی، آپ نے مجھے بلایا تھا، چودھری دلاور سادھو کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگا۔ ہاں چودھری، تمہارا کام ہو گیا ہے، وہ لڑکا مجھے مل گیا ہے،
जो अगर तुम्हारी बेटी से शादी करेगा तो तुम्हारी बेटी शहंशाह जिन्नात से छुटकारा पा सकती है, पर तुम्हें इस लड़के को रकम देना होगी। आप फिक्र ना करें साधु जी, मैं हर कीमत दूंगा अपनी बेटी को बचाने के लिए। साधु ने अरमान को भी बुलाया था, इसलिए थोड़ी देर में अरमान भी वहां आ गया। चौधरी ने अरमान की तरफ देखा। वो एक अच्छा खासा खूबरू नौजवान था। एक पल के लिए इसे परेशानी हुई कि वो क्या करने लगा है, पर अगले पल अपनी बेटी की मोहब्बत गालिब आ गई। मैं चाहता हूँ कि तुम शादी से पहले रोशना से मिल लो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। आज चांद की 3 तारीख है। अगले माह चांद की 1 तारीख को तुम्हारी रोशना के साथ शादी हो जाएगी और बिल्कुल सादगी से होगी। किसी को कुछ पता नहीं होगा। ठीक है चौधरी जी, मुझे मंजूर है। फिर भी मुझे थोड़ा सा टाइम दे ताकि इस दौरान मैं अपनी बहनों की शादी भी कर लूं, तभी मुझे सुकून की मौत आएगी, अरमान ने कहा। चौधरी थोड़ा सा रंजीदा हो गया। वो लड़का अपनी बहनों की खातिर अपनी जान देने को तैयार है। बतूल जाओ, निशा बेटी को बुला कर लाओ, चौधरी दिलावर ने अपनी मुलाजमा बतूल से कहा। अच्छा चौधरी जी, वो चली गई। देखो अरमान, हमने रोशना को तो ये बता दिया है कि तुम्हारी इससे शादी हम करने लगे हैं, पर इससे मालूम नहीं कि शादी के बाद तुम्हारी मौत वाक़ई हो सकती है। तुम ऐसा इसको कुछ मत बताना। ठीक है चौधरी जी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। अगर मेरी बहनों की शादी का मसला ना होता तो मैं कभी भी इस काम के लिए तैयार नहीं होता। अरमान की आंखों में आंसू आ गए तो चौधरी दिलावर ने इसे गले से लगा लिया। आओ आओ रोशना बेटी आओ, चौधरी दिलावर ने रोशना को देखकर कहा। इससे मिलो, ये अरमान है, ये वही लड़का है जिससे हम तुम्हारी शादी करवाने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, रोशना ने मुस्कुराते हुए कहा तो अरमान इसे देखता ही रह गया। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। इस 1 माह में अरमान ने अपनी दोनों बड़ी बहनों की शादी कर दी। अरमान की माँ हैरान थी कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। वो जब भी अरमान से पूछती तो वो कहता, माँ मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर कारोबार शुरू किया है। वो बाहर के मुल्क से पैसा लगाता है, इधर मैं कारोबार संभालता हूँ। वो माँ को असल बात बताकर मौत से पहले नहीं मरना चाहता था। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन अरमान और रोशना की शादी थी। चांद की 1 तारीख थी। अरमान रोशना के कमरे की तरफ बढ़ा जहां वो इसकी मुंतज़िर थी। वो जानता था कि वो खूबसूरत दुल्हन इसकी मौत थी। इस मासूम को आज की रात अजियत से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अरमान ने मुस्कुराते हुए रोशना का हाथ थामा। रोशना, आज हमारी मिलन की रात है और आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दे सकेगा, अरमान ने कहा। आज के बाद हमारी मोहब्बत अमर हो जाएगी। लेकिन रोशना को क्या पता कि आज हमारे मिलन की आखिरी और पहली रात है। अरमान तो ये सोच रहा था, लेकिन ऊपर वाले ने कुछ और सोच रखा था। अगले दिन चौधरी दिलावर और इसकी बीवी जरीना बेगम रोशना के कमरे में गए। जब वो कमरे में दाखिल हुए तो अंदर के मंजर ने इन्हें साकित कर दिया। जाओ नौरीन, अरमान को बुला कर लाओ, कमरे से बाहर आकर नाश्ता करे। कल सारा दिन ये लड़का घर से बाहर रहा है, रात को आ गया होगा। वैसे भी अरमान रात को बाहर नहीं रहता। अरमान की माँ शाहिदा ने अपनी बेटी नौरीन से कहा, अरे वो अरमान के कमरे में गई। अरमान कमरे में नहीं था। हाँ, इसके बेड की एक तरफ एक लेटर पड़ा हुआ था। नौरीन ने वो लेटर उठा लिया और कमरे से बाहर आ गई। माँ, अरमान तो कमरे में नहीं है, लेकिन इस कमरे में ये लेटर मिला है, तो पढ़ो इसे, क्या लिखा है, नौरीन को माँ ने कहा। नौरीन पढ़ने लगी। प्यारी अम्मी जान, मैं जानता हूँ कि आपने और बाबा ने कितनी मोहब्बत से मुझे पाला है और मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं माशरे में सर उठा कर जी सकूं और आप लोगों के लिए कुछ कर सकूं। आपको, अब्बू को, बहनों को मैं दुख में नहीं देख सकता था। मैं क्या करता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे चौधरी दिलावर मिले, जिनकी बेटी पर आसेब का साया था, जो इस वक्त ख़त्म हो सकता था कि मैं इससे शादी करता, और इन्होंने मुझे पैसे दिए थे जिसकी वजह से मैं बहनों की शादी करवा सका, और बाकी पैसे मैंने अलमारी में रखे हैं। इससे नौरीन की शादी कर दीजिएगा और बाबा का इलाज भी करवाना है। माँ, मुझे रोशना से शादी के बाद मरना होगा, वो ठीक हो जाएगी।
हुमा, मुझे माफ़ कर देना। नौरीन, तुम भी अपने भाई को माफ़ कर देना। खूब दिल लगा कर पढ़ना और डॉक्टर बनना। माँ और बाबा का ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। ख़त नौरीन के हाथों से फिसल गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। अरमान की माँ के मुंह से चीखें निकल रही थी। अरमान, तुम वापस आ जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, पैसे की नहीं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो बहुत दूर जा चुका था, जहाँ से कोई भी वापस नहीं आता। अरमान का बीमार बाप एक तरफ साकित हो गया था। इसने अपनी तमाम उम्र की जमा पूंजी आज लुटा दी थी। वो खाली हाथ रह गया था। कमरे में बहुत खौफनाक मंजर था। कमरे में खून बिखरा हुआ था। वो खून पेट से निकल रहा था। एक तरफ अरमान की लाश पड़ी हुई थी और जरीना बेगम रोशना को झंझोड़ते हुए बोली, ये तुमने क्या कर दिया रोशना, क्यों ऐसा किया? तभी इसकी नज़रें इस खत पर पड़ी जो रोशना के सर की तरफ पड़ा हुआ था। जरीना ने वो खत उठा लिया और पढ़ने लगी। बाबा जान और अम्मी जान, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं और मुझे इस तकलीफ़ से बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं और किसी की जान भी ले सकते हैं। हाँ बाबा जान, अरमान ने मरने से पहले मुझे सब बता दिया था। इसने वादा खिलाफ़ी नहीं की, लेकिन बाबा गलती मेरी थी। मैं वहाँ नदी के किनारे गई थी और मैं अरमान से बहुत प्यार करने लगी हूँ। नहीं चाहती थी कि मेरी गलती की सज़ा इसे मिले, लेकिन वो मेरी खातिर अपनी जान देने पर तैयार हो गया। अपनी बहनों के लिए वो पैसे लेकर भाग भी सकता था, पर इसने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने ये नहीं सोचा कि अरमान के बाद इसकी बहनों का क्या होगा? बाबा, इसलिए मैंने भी फैसला किया है कि अरमान के बाद मैं भी अपनी जान देने लगी हूँ, क्योंकि इसके बगैर मैं जी नहीं पाऊँगी। मुझे माफ़ करना बाबा जान, अब कोई शहंशाह जिन्नात हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। चौधरी दिलावर का दिल बंद हो गया। वो दिल पर हाथ रखकर ज़मीन पर बैठता चला गया। अपनी बेटी को बचाने के लिए इसने क्या कुछ ना किया, पर होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। कमरे में सिर्फ जरीना बेगम की चीखें थीं और सब कुछ ख़त्म हो चुका था। व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारी मुलाकात दोबारा होगी एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।